Assalamualaikum. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am here with the continuation of mathematics model question paper 1. That is, in my previous video I have completed till question number 16 of model paper. So now let us begin from the third main. In the third main, that is, answer the following question of 2 marks question, that is 8 questions of 2 marks which carries 16 marks. So let us see the question number 17 here. Find the 25th term of an arithmetic progression. Here arithmetic progression AP is given 2, 6, 10, 14. What they have told? Find the 25th term of, that is 17th one question. Find the 25th term of an AP. The AP is given AP is 2, 6, 10, 14 dots they have given. This is the AP. Find the 25th term of an AP 2, 6, 10, 14. As per my viewer request, I will try to say in even Urdu also. इस क्वेश्चन में 25th टर्म फाइंड करना है. यहाँ पे AP दिया गया है, that is 2, 6, 10, 14 is given AP. So I have written given AP. तो हम लोगों को 25th टर्म फाइंड करना है. We need to find the 25th term. So let us find first A. Always A is a first term. A जो है पहला टर्म है, that is 2. And D we know that second term minus first term. D जो है कॉमन डिफरेंस जो है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. A2 माइनस A1. D इज इक्वल्स टू A2 सेकेंड टर्म कौन सा है 6 माइनस 2. सो D इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज नथिंग बट 4. वी गॉट D इज इक्वल्स टू 4. What they have told us to find 25th term. We know that हम लोगों को मालूम है कि A 25th term is equals to A plus 24D. A 25 is nothing but A plus 24D. So A plus A is nothing but, here A place we have to write 2 plus 24 as it is. D is nothing but 4. So 2 plus 4 4s are 16, 4 2s are 8, 9, 96. 96 plus 2 is 98. So 25th term is 98. How we know that 25th A25 is A plus 24D? We should know always this. A 100 means A plus 99D. A5 is nothing but A plus 4D. We should take always like this. तो यहाँ पे 25th टर्म फाइंड आउट करने बोले हैं, तो A25 इज इक्वल्स टू A plus 24D लिखना है हम लोगों को. अगर यहाँ पे A35 पूछते तो A plus 34D. एक लेस करना है, यहाँ पे जो नंबर बोलते हैं उसको एक लेस करके लिखना है. तो यहाँ पे A plus 24D. A की वैल्यू हम लोगों को मालूम है 2. A की जगह पे हम लोग 2 लिखे, प्लस एज इट इज रखें. 24 को एज इट इज लिखना है. D की वैल्यू जो है 4 है. 2 एज इट इज. 24 4s are 96. सो 96 प्लस 2 98. सो A25 जो है हम लोगों को 98 मिला. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. ये दो क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? फाइंड 25th टर्म डायरेक्ट बोले हैं, यहाँ पे फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 यूजिंग द फॉर्मूला. यहाँ पे AP दिया गया है 18th वन क्वेश्चन. Sum of 20 terms. Yes, 20 we have to find. And AP is given 3. Given AP is, यहाँ पे AP दिया गया है 3, 8, 13 dot dot dot. Now this is the given AP. So always I have told you that first term is 3. A is equals to 3. First term is A.
Sorry, first term is not 3. Always the first term is nothing but A. So A is equals to 3. D is nothing but second term minus first term. 8 minus 3, that is 8 minus 3 is nothing but 5. So they have told us to find the sum of 20 terms. हम लोगों को SN का फॉर्मूला मालूम है. SN is equals to n by 2 2a plus n minus 1 d. When they ask you to find sum, we should use this formula. Now, yes, how much they have told us to find? Sum of 20 terms. Yes, 20 is equals to n की जगह पे 20 लिखना है. 20 by 2, 2a. A value is 3 plus n value is 20. N place we have to write 20 minus 1. D is nothing but 5. Now we have to calculate this. 2 ones are 2, 2 tens are 20. 10 into 2 threes are 6 plus 20 minus 1, 19 into 5. Now 10 into 6 as it is plus 19 fives are 95. We can see how 5 nines are 45. 4 here, 5 ones are 4 plus 4 is 95. 19 fives are 95. 10 plus 95 plus 6 is 195 plus 6 101. We got 101 if we add this 95 plus 6. So 101 into 10 is 1010 we got. So sum of S20 term is 1010 we got the answer. तो क्या करना है यहाँ पे ये फॉर्मूला लेना है. SN का फॉर्मूला जो है ये है SN इज इक्वल्स टू n by 2 2a plus n minus 1 d. तो n की जगह पे 20 लिखना है क्योंकि यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म्स बताया गया है. तो n की जगह पे 20 by 2 as it is 2 as it is 3 की a की जगह पे 3 लिखना है प्लस n की जगह पे 20 माइनस 1 d की जगह पे 5 बिकॉज 5 की वैल्यू मिली है हम लोगों को, d की वैल्यू मिली है. 2 1 2 10 10 को ऐसे ही रखना है. 2 3 6 ऐसे लिखना है प्लस 20 माइनस 1 19 19 5 95 95 को 6 से ऐड करना है तो 101 को 10 से मल्टीप्लाई करने से 1010 मिल गया हम लोगों को. तो ये क्वेश्चन जो है 18th वन क्वेश्चन है. तो 18th वन क्वेश्चन में हम लोगों को चॉइस है. वी हैव अ चॉइस इन 18th वन क्वेश्चन. व्हाट इज दैट? वन मोर क्वेश्चन. फाइंड द सम ऑफ first 30 positive integers divisible by 6. Or they have asked sum of first 30 positive integers divisible by 6. तो हम लोगों को सबसे पहले numbers which is divisible by 6 ये और है जो 18th वन ही. So numbers which is divisible by 6 are 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24 आर इन AP. ये जो है AP में है कंटिन्यू. सो वी हैव रिटन दे हैव टोल्ड सम ऑफ फर्स्ट 30 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. सो ऑलवेज फर्स्ट डिजिट इज A व्हाट वी गॉट 6. D सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 12 माइनस 6. D इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 इज नथिंग बट 6. A भी 6 मिल गया and D also we got 6. Now we know SN formula. SN is equals to n by 2 2a plus n minus 1 D. Same formula. Sum na. So first 30 integers they have told. Sum of 30 integers. तो S30 हम लोगों को find करना है. So in place of n what we have to write? 30. Yes, 30 is equals to 30 by 2. 2a value what we have 6. 2 into 6 plus 30 minus 1. D also is nothing but 6. Okay. 2 1s are 2. 2 1s are 2. 1 left. 2 15s are 30. So 15 into 6 2s are 12 plus 30 minus 1 29. 29 into 6 we have to multiply now.
So 15 into 12 as it is 29 into 6. So 29 into 6 is 174. We have to multiply this. We got 174 and 15 into 174 plus 12. हम लोगों को ये दो मल्टीप्लाई करना है. Then 174 plus 12. What we will get? 186. So last step क्या करना है? 186 को 15 से मल्टीप्लाई करना है. 186 into 15 we have to do. After multiplying we get the answer 2790. So sum of first 30 integers are which is divisible by 6 are 2790. So this complete the question number 18. Now let us see the question number 19. So the question number 19 is solve 3x plus y is equals to 15, 2x minus y is equals to 5. This is the question from pair of linear equation. So two equation is given. Solve they have told. Solve means we have to find the value of x and y here. Okay. So let me write the question here. That is question number 19. Solve 3x plus y is equal to 15 and 2x minus y is equal to 5. Now here we can see that, we can here easily see that what is the same in both equation. We can see here y and y is same. And we can see both is having different sign. When we have different sign, we can easily eliminate it. So we will consider this as equation 1 and one more equation as 2. Now we can directly eliminate y because one positive, one negative get cancelled. So y get cancelled. So 3 plus 2, 5 because both positive sign. 3 plus 2, 5x is equal to 15 plus 5 is 20. X is equals to 20 by 5. 5 ones are 5. 5 fours are 20. So x value what we got? 4 we got. They have told solve now. We have to find the x and y value. We got x value as 4. Now what we have to write? Put we can say or substitute we can say. Put x is equals to 4 in any one of the equation. Either 1, either 2. So I'll take equation 1. Any one equation we can take. Put x is equals to 4 in equation 1. So I'll write equation 1. 3x plus y is equals to 15. 3x, x value we got 4. Plus y is equal to 15. 3 fours are 12 plus y is equals to 15. Y is equals to 15 minus 12. Y is equals to 15 minus 12 is nothing but 3. So we got y and x value. So let me quickly tell in Urdu. यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में से है. तो अगर यहाँ पे वी कैन सी कौन सा नंबर हम लोगों को सेम है देखना है. यहाँ पे y एंड y सेम है और इसके साथ ऑल्टरनेट साइन है. अगर एक प्लस एक माइनस रहा तो इजीली कट होता है. ओके अगर सेम साइन नहीं है तो साइन चेंज करना पड़ता है. यहाँ पे साइन सेम डिफरेंट साइन है तो कट हो गया. यहाँ पे बोथ प्लस 3 प्लस 2 क्या होता है 5x. 15 प्लस 5 20. x इज इक्वल टू 20 बाई 5. 5 वन जा 5, 5 फोर जा 20. तो x की वैल्यू 4 मिल गई है यहाँ पे. तो ये x की वैल्यू हम लोगों को इक्वेशन 1 एंड 2 को दोनों में से एक इक्वेशन में डाल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 ली हूँ. तो आई हैव रिटन इक्वेशन 1. 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. तो x 3 एज इट इज रखी हूँ. x की जगह पे 4 लिखना है प्लस y एज इट इज इक्वल्स टू 15. 4 3 ज़ा 12. 12 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 15. y इज इक्वल्स टू 15 यहीं पर है. 12 यहाँ से यहाँ पे लिया गया है तो प्लस बिकम्स माइनस. 15 माइनस 12 इज 3. y इज इक्वल्स टू 3. तो x एंड y की वैल्यू हम लोगों को मिल गई. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20.
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने पासिंग पैकेज में भी बताया था कि ये 2 क्वेश्चन आते ही हैं। आई हैव मेड पासिंग पैकेज वेयर आई हैव टोल्ड दिस आर द 2 ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इवन आई हैव टोल्ड अबाउट दिस क्वेश्चन ऑल्सो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे ये प्रॉब्लम हम लोगों को क्या कैसे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। So let me write the question. Question number 20. X square minus 3x plus 1 equal to 0. इस क्वेश्चन को हम लोगों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लेके सॉल्व करना है। So what we have to write? Comparing given equation with स्टैंडर्ड फॉर्म। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये दिया गया इक्वेशन वी हैव टू कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। व्हेन वी कंपेयर दिस 2 इक्वेशन वी कैन सी इन प्लेस ऑफ ए नथिंग मीन्स 1, ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू, बी की जगह पे क्या दिया गया है -3 एंड सी इज इक्वल्स टू 1। तो ये चीजें दिया गया है। वी नो दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज नथिंग बट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। x इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला माइनस का है, आई कीप एज इट इज माइनस, b की वैल्यू -3। इन प्लेस ऑफ b व्हाट वी हैव टू राइट -3, देन प्लस एंड माइनस, फॉर्मूला का एज इट इज रखना है, रूट एज इट इज, b की वैल्यू क्या है -3, ऊपर जो स्क्वायर है इसको स्क्वायर को एज इट इज रखना है, माइनस साइन आई कीप एज इट इज, 4 एज इट इज। a की वैल्यू जो है 1 है, a की जगह पे 1 रखना है, c की जगह पे भी 1 ही है, अपॉन 2a की वैल्यू 1 है। सो वी हैव टू सॉल्व दिस नाउ। x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस को ऐसे ही रखना है। वी नो दैट नेगेटिव नंबर स्क्वायर इज पॉजिटिव। जब भी नेगेटिव नंबर माइनस नंबर के ऊपर स्क्वायर आता है तो माइनस साइन चली जाती है। ये वी हैव टू रिमेंबर इट वेल, हम लोगों को याद रखना है। माइनस साइन आकर अगर स्क्वायर आया तो माइनस साइन चली जाती है। 3 स्क्वायर 9, क्योंकि माइनस साइन चली गई, माइनस 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। एक्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस और माइनस रूट 9 माइनस 4 जो है क्या है, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज 5/2। तो हम लोगों को ये √5 की वैल्यू वी डोंट नो। सो अगर यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर आता था तो वी नो दैट √25 इज 5, √9 इज 3, बट ये √5 वी डोंट नो। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, 3 प्लस √5/2 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस √5/2। यहाँ पे प्लस माइनस अलग क्यों किए, यहाँ पे प्लस और माइनस, इतना ही। दिस इज ओनली द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 21 नाउ। ओके, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड हेंस राइट द नेचर ऑफ रूट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है इक्वेशन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बताया गया है। यहाँ पे जैसे सेम कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, सेम इसी तरह लिखना है, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, कंपेयरिंग given equation with ax square
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखना है. देन व्हाट वी हैव टू डू, कंपेयर करना है. ए की जगह पे क्या है 2, ए इज इक्वल्स टू 2, बी -6 and C 3. What they have told us, find the discriminant. डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट फॉर्म में क्या है D. D इज इक्वल्स टू, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है D इज इक्वल्स टू B² माइनस 4AC. ओनली दिस मच फार्मूला फॉर डिस्क्रिमिनेंट. तो हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे. D इज इक्वल्स टू, B की वैल्यू क्या है -6, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लिखना है, -4 इंटू A 2 C 3. सो D इज इक्वल्स टू, नेगेटिव नंबर आके स्क्वायर आया तो नेगेटिव साइन चली जाती है. आई हैव टोल्ड यू 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24. D इज इक्वल्स टू व्हाट वी गॉट, 36 माइनस 24 क्या होता है 12. एंड अभी D की वैल्यू 12 आई, बट फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट मीन्स D इज इक्वल्स टू 12. और क्वेश्चन में क्या बोले हैं, हैंस राइट द नेचर ऑफ रूट. तो नेचर क्या है यहाँ पे, नेचर ऑफ रूट कैसे लिखेंगे, D. 12 0 से ग्रेटर है या स्मॉलर है, ग्रेटर है. D ग्रेटर देन 0. देयरफॉर इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. डिस्टिंक्ट रूट क्या लिखना है, इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, और हैंस द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भी लिख सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 21. एंड इन क्वेश्चन नंबर 21 दे हैव गिवन चॉइस और दिए हैं. सो व्हाट वी हैव टू राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² plus ax minus 4 equal to 0 has distinct real root. यहाँ पे कंडीशन दिया गया है distinct real root. Okay. Which equation they have told in the question? x² plus ax minus 4 equal to 0. Since it is given that equation has distinct real root. It is given, right? Therefore, अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि नेचर ऑफ रूट अगर डिस्टिंक्ट रियल है तो D ग्रेटर देन 0 होता है. सो हियर ऑल्सो व्हाट यू हैव टू राइट, D ग्रेटर देन 0. इक्वेशन एज डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब क्या है, D ग्रेटर देन 0. D की वैल्यू क्या है, B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लिखे नहीं. A की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो 1, B की वैल्यू, B की जगह पे क्या है A, एंड C की जगह पे क्या है -4. वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन द इक्वेशन. B की जगह पे A² माइनस 4, A की वैल्यू 1 है, C की वैल्यू -4 ग्रेटर देन 0. A² माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 ग्रेटर देन 0. तो यहाँ पे वी कैन ईजीली सी दैट यहाँ पे कोई भी नंबर अगर हम लोग लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 3 स्क्वायर जो है 9 प्लस 16 ग्रेटर देन 0 होता है. यहाँ पे अगर A की जगह पर कोई भी नंबर लेंगे तो ग्रेटर देन 0 ही होता है. तो इसका मतलब हम लोग ये क्वेश्चन प्रूव किए, इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू रियल नंबर. तो ये प्रूव हुआ. देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज, therefore the given prove बोले है ना, therefore the given equation has distinct real root. We proved by this. तो यहाँ पे क्या बोले हैं वो, it should be real greater than 0. तो यहाँ पे कोई भी नंबर डालेंगे that will be greater than 0. So we proved this. Okay. Now let us see the next question. Question number 22.
Find the distance between the coordinate of the point A 2 3 and B 10 minus 3. Even this question I have told in a passing package. It is a sure question in exam. यहाँ पे मॉडल पेपर में भी दिया गया है. So let us see the question number 22. Find the distance between the coordinate A 2 3 and B 10 minus 3. So we have to find the distance between this. We know that distance formula, D is equals to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 होल स्क्वायर. ये डिस्टेंस फॉर्मूला है. तो हम लोग किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स. सो ए बी इज इक्वल टू, ये फर्स्ट पॉइंट जो है वी हैव टू कंसिडर दिस एज x1 y1 फर्स्ट पॉइंट. तो सेकेंड पॉइंट x2 y2. ये पॉइंट के नंबर्स जो है x y. सो x1 y1. सेकेंड पॉइंट जो है x2 y2 लिखना है. सो वी हैव टू सब्सटीट्यूट इन द फॉर्मूला नाउ. रूट को एज इट इज रखना है, ब्रैकेट एज इट इज. x2 की जगह पे क्या है? x2 की वैल्यू क्या है? 10. माइनस साइन को एज इट इज रखना है. x1 की वैल्यू जो है 2. ऊपर जो स्क्वायर है स्क्वायर एज इट इज रखना है. प्लस साइन एज इट इज. y2 की वैल्यू क्या है? -3. y2 वैल्यू इज -3. ये फॉर्मूला का साइन माइनस एज इट इज. y1 वैल्यू इज 3. स्क्वायर एज इट इज. सो ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 10 minus 2 8. ऊपर जो स्क्वायर है स्क्वायर एज इट इज. प्लस माइनस माइनस जो है प्लस है बट साइन माइनस आती है. प्लस करना है, साइन माइनस लिखना है. माइनस माइनस प्लस. 3 + 3 6. -6. साइन ऑलवेज माइनस. डूइंग प्लस बट साइन माइनस. स्क्वायर एज इट इज. ए बी इज इक्वल टू रूट ऑफ 8 स्क्वायर इज 64. 8 8 64. प्लस माइनस साइन आकर स्क्वायर आया तो पॉजिटिव आता है. आई हैव टोल्ड ऑलरेडी. नेगेटिव साइन टू द पावर स्क्वायर इज पॉजिटिव. 6 स्क्वायर 36. So AB is equals to 64 plus 36 is 100 and root 100 is nothing but 10. So distance formula को 10 units लिखना है. So this is the problem number 22. So now I'll stop here. In my next video I am going to continue from question number 23. Do like and share and subscribe my channel so that you cannot miss any of my video. Thank you.